Who cannot see Tejasvi? Yeah. That's what they were calling me. We can't see you. We can't see you. I'm like, I'm right here. We can see you, and unfortunately now we can hear you also. खाना भी खिलाऊंगी देखो चल. I didn't get your curry chawal last time ka. What else was there? Some chicken was there, no? It's basically a learning process. मैं यहाँ सिर्फ सीखने आई हूँ. Besides that, I have always liked experimenting with. I've always tried new things in life, and this thing came up. So basically, they've right now just seen, the media has seen a glimpse of the show from the first two episodes that they have that we have shot right now. The media has seen a little bit of a glimpse of the kind of comedy we are bringing their way. So now I was just telling the rest that we've already taken down the questions from the media. They are also on the call. They're listening to us as we speak. And the PR team will now ask the questions which have come in already on behalf of media. Yeah? Okay. So we get started. Jyoti, Karan, get started. Yes. Hi, this is Jyoti. Hi, Jyoti. Hi, Jyoti. Hello. So the first question is for Ali Asgarji. It's from Nirali from Times Now. She's asking, people are going to see you after a very brief period. What was the reason behind your absence from TV show? The reason behind the absence? Absence from TV shows. नहीं बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है. In this pandemic, I did a show called Akbar Kabal Birbal on Star Bharat, but that didn't do. It was only for 3 months, and honestly was waiting for some good content to do, and fortunately the Z comedy show concept came my way, and ऐसा लगा नहीं कि मैं ना बोलूं, क्योंकि ऐसे ना बोलने के लायक कुछ था नहीं इसमें. Something new to do, and the team and Farah ma'am. So this सारा जो compilation था. I'm going to bring lunch for him every shoot day and come. That was the main reason. Yes, सबसे बड़ा, because मैं सबको भी यही कहता हूँ कि अगर फराह मैम के पास से कभी भी कोई ऑफर आए तो 1 मिनट भी बोलते ना सोचने का वक्त नहीं लेना, फट से हाँ कह देना. हाँ, रोल अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है, लंच तो मस्त मिलेगा. Yes. Question is for Faraji. Farah ma'am, this question is from Supriya from BBC Hindi News. Okay. पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए लाफ्टर आज कितना इम्पोर्टेंट हो गया और आप इस शो के जरिए. I think Jyoti, this whole of 2020, almost till second wave got over, we had forgotten how to laugh. क्योंकि सिर्फ रोज स्ट्रेस की खबरें आती थी, स्पेशली जो लास्ट 4 महीने सेकंड वेव जब आया है. एवरी डे वी वुड हियर समबडी वी नो, मतलब एकदम ही करीबी या दूर के या फ्रेंड के पेरेंट्स या somebody is passed away because of COVID, somebody is not getting. So it's been very stressful, not only for us, for the whole country, the whole world, I think. So I think laughter की जो importance है वो अब हमें समझ में आई है. Now when I go on the show और मैं वहाँ बैठती हूँ और मैं दिल से हंसती हूँ, तभी उसकी अहमियत पता लगती है, क्योंकि वो वैसी वाली हंसी हम I think 1.5 साल से हम ऐसे हंसे नहीं है. I know, and I think that's why our show is called Laughter on Stress Gone, because it's really meant to be a stress buster. So I'm hoping कि जितना मैं हंसी हूँ उतना आधा भी ऑडियंस हंस ले तो we are home. Thank you so much, Faraji. Thank you, Jyoti. Next question is for Dr. Sanket Bhosle. This is from again Supriya ji from BBC Hindi News. इनका सवाल ये है कि इस पूरे पैंडेमिक में आपको कौन सी चीज ने हंसाया है और गुदगुदाया है और एंटरटेन रखा है? सुगंधा की कुकिंग ने. यही मेरा जवाब. नहीं, एक्चुअली सुगंधा की कुकिंग ने, सुगंधा ने जो नए नए डिशेस मैं कहूँगा डिस्कवर किए, क्योंकि शादी के बाद वो नई नई चीजें ट्राई कर रही है कि मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी. खीर बनाने जा रही है तो मुझे पूछ रही है नमक है क्या घर पे.
अरे मेरा फेवरेट आज आया नहीं, बलराज। He's just joined us. जॉइन बलराज, कहाँ हो तुम यार? You need to. सॉरी tell सॉरी the- सॉरी संकेत, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। वही मैम ने तो एकदम पहले ही पहचान लिया, उनके पास सिक्स सेंस है कि सुगंधा की वजह से मैं हंसा हूँ। और हमारी सुगंधा की कंपनी बहुत अच्छी है, तो सुगंधा ऑलवेज केप्ट मी स्माइलिंग, लाफिंग ऑन हर जोक्स एंड जो चीजें वो करती है। एंड घर में बहुत सारी बैठकर वेब सीरीज देखी हमने, और देखा कुछ अच्छी कुछ बुरी, सब कुछ देख लिया हमने। और बाद में शादी हो गई, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊँ आपको। हंसना भूल गया बच्चा शादी होने के बाद। नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट, तुम दोनों के रील्स ने हमको बहुत हंसाया। Oh, thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank Thank you you. so much. Coming from you is big thing. वेरी एंटरटेनिंग योर रील्स आर। Thank you, Thank you, ma'am. हाय बलराज। Thank you, Dr. Sanket ji. Thank you. अगला सवाल। Balraj, I think you're on mute, huh? You can unmute yourself so that, it's a free-flowing conversation. All of us. Hello, can hear. hello, hello. Hi. नमस्कार मैम, नमस्कार। बलराज तू Hello, कहाँ था? hello. कहाँ Hello. था? मेरी नजरें ढूंढ रही थी तुझे। हाँ। रात की शादी हुई तो खाना वाना कुछ बना के फिर लेट हो गया उसको बेचारे को। अच्छा बेचारा। मेरी बीवी मायके गई हुई है, तो मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। अच्छा, पड़ोसी के घर से आने में टाइम लगता है उसको। मेरे पड़ोस में फोरम रहता है। सॉरी ज्योति, कंटिन्यू। नो प्रॉब्लम। अगला सवाल सुगंधा जी के लिए है। टेरी चक्कर से साची जी का सवाल है कि how has married life been treating you, and since you're back on screen, how do you balance personal and professional life? Hello, hi. So actually तो मुझे काफी मजा आ रहा है, क्योंकि एक हेल्पिंग हैंड मिल गया है। अभी सारा मतलब काम यही करता है। इसकी टी शर्ट पे भी मैंने अभी चाकू मारे हैं, अभी जस्ट रिसेंटली, बिकॉज ब्रेकफास्ट रेडी नहीं था। वेल तो, डन uh, सुगंधा। तो काफी मजा आ रहा है। एंड हम लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि शो में एक साथ है, बिकॉज ज्यादा टाइम एक साथ रहने का और ज्यादा मिलता है। मुझे तो मजा आता है, इसको शायद मुझे भी बुरा बहुत लगता मजा आता है। मुझे सबसे ज्यादा मजा ये आता है कि हमारे शो में दो टीम्स है और हम अलग अलग टीम में, ये सबसे मजे वाली बात है। हाँ, एक्चुअली संकेत बिल्कुल मेरी नजरों के सामने रहता है, बिकॉज ये हमारी एंटी टीम में है। टीम बुझाएंगे और हम है टीम जलाएंगे। तो मैं भर भर के इसको जलाती हूँ ऑन सेट, और ये भर भर के बुझते रहते हैं। तो मजा आता है। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग साथ में ही मतलब आते जाते पूरा टाइम एक साथ रहते हैं, तो मेरी नजरों के सामने रहता है ये। दिस इज द बेस्ट पार्ट। यस, थैंक यू सो मच सुगंधा जी। अगला सवाल है सिद्धार्थ सागर जी के लिए, कृतिका का आज तक से। What is the differentiating factor of this show from other comedy shows that we've seen till date? बिल्कुल। मुझे लगता है जो हम लोगों ने अब तक शोज करे हैं उसमें एक तरीका होता है कि पहले स्टैंड अप कॉमेडियंस आते हैं, स्टैंड अप करते हैं, या फिर एक गैग होता है। पर जिस तरीके का सेट लगा है, ये बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा सेट है। और 90 डिग्री एक कंसेप्ट है, जिसके अंदर एक सेट ही पूरा 90 डिग्री के एंगल पे लगा हुआ है, और उसमें परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें लाइंस भी याद रखनी है और कुछ भी आपके मुंह पे कभी भी गिर सकता है। दूसरा एक स्लोप का एक्ट है, जिसके अंदर आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, और सीधे खड़े नहीं हो सकते वहां पे खड़े होकर लाइनें बोलनी है। तो अभी कई गेस्ट हमारे शो पे आए हैं, और फराह मैम ने तो मना ही कर दिया था। फराह मैम ने तो मना कर दिया कि मैं ट्राई भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैम का चंडीगढ़ में शूट था। लेकिन इसके बाद रितेश जी आए हैं और मिका पाजी आए हैं, और उन्होंने आके ट्राई करा है। बहुत डिफिकल्ट उनको भी मालूम हुआ, क्योंकि वो देखने पे तो शायद इतना पता ना चले, पर उस पर खड़े होने के बाद पता चलता है कि वो बहुत डिफिकल्ट है परफॉर्म करना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टेज बहुत डिफरेंट है। ऐसे स्टेजेस कभी लगे नहीं है, ऐसा सेटअप कभी नहीं हुआ है। और बाकी कॉमेडी ऐसी चीज है जो कितनी भी डिफरेंट हो जाए, बनती तो कॉमेडी का जो मेन एसेंस है वो ह्यूमर ही है। उसके लिए मुझे लगता है कि ये एक नया तरीका, एक नया सेटअप है, नया कंसेप्ट है जो अब तक हमने नहीं देखा है। तो ये बहुत डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अब तक आया भी नहीं, इंडिया के अंदर ऐसा कंसेप्ट नहीं आया है। और बाकी जो शोज आते हैं, मैं ये मानता हूँ कि जो भी एंटरटेन करने वाला शो है उसमें कोई भी कंसेप्ट हो, अगर एंटरटेनमेंट है, ह्यूमर है, तो वो शो बहुत ही अच्छा है। और इस टाइम के बाद जो भी शो एंटरटेन कर सकता है, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस शो के थ्रू हम लोग एंटरटेन कर सकें। कॉमेडी, ह्यूमर, जो कुछ है वो हम लोग दे सकें। तो
हम सब बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू सिद्धार्थ जी। अगला सवाल चित्राशी जी से है। योग्यता पंजाब केसरी का सवाल है जो पंजाब केसरी से है कि इंडस्ट्री में आपको कौन से कॉमेडियन का काम बहुत ज्यादा पसंद है और हम आपको जी कॉमेडी शो में कौन से अवतार में देखते हैं? वाह यार, मेरे को इतना डिफिकल्ट सवाल दिया है, कुछ हल्का फुल्का देते तो आई थिंक फेवरेट तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंट है और जो अभी इतने सारे टैलेंट आए हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, मतलब आर्टिस्ट ही हैं सब यार। आई थिंक मुझे लगता है सब अपने अपने तरीके में बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम एवरीवन। इनफैक्ट हमारी टीम में, हमारे शो में इतने सारे लोगों के साथ मुझे काम करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बिकॉज एवरी डे आई गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम माई टीम एंड माई को-स्टार्स। तो मैं तो अपनी टीम की फैन हूँ यार। अभी मुझे अपनी टीम में बहुत मजा आ रहा है। गुड आंसर चित्रा। थैंक यू। नहीं, ये सच बात है, बिकॉज मुझे जेन्युइनली में बहुत मजा आ रहा है। तो मैं जब भी इन लोग को परफॉर्म करते हुए देखती हूँ स्टेज पे, हमारी टीम से होते हैं, आगे वाली टीम से होते हैं, आई एम इन ऑ एंड आई एम लाफिंग, आई एम ऑलवेज इन स्प्लिट। सो आई थिंक वो मेरी टीम भी कह लेगी कि हंसते हाँ करते हुए मेरी आवाज सुनाई देती है। तो दैट्स देयर। एंड व्हाट वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति? अगला सवाल ये था कि क्या हम आपको जी कॉमेडी शो में कौन से अवतार में देखेंगे? You know, the best thing about this show is क्योंकि इसमें हर किसी को अलग अलग रोल, अलग अलग किरदार निभाने को मिल रहा है, तो उसमें एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, यू हैव सो मच ऑफ स्पेस टू ग्रो, यू हैव सो मच ऑफ स्पेस टू परफॉर्म। तो हमारे जितने भी छोटे छोटे गैग्स होते हैं उसमें कभी हम वाइफ बन रहे हैं, कभी हम भाई वाली बन रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे भी बहुत अलग अलग तरीके के रोल हम करने वाले हैं और होपफुली कि आप लोगों को हम लोग हंसाएं, थोड़ा सा आपकी हंसी ऑन हो और आपका स्ट्रेस थोड़ा सा गॉन हो। ओके, अगला सवाल फरा मैम आपसे है। ट्रिब्यून से शीतल जी पूछ रहे हैं कि as we have seen in one of the promos, artists are talking on video call. I would like to know all the real life technical challenges that you all experienced, which were included in your skits and sketches. I think which were included in the scripts. In the skits. I think इस टाइम जो skits हमने मैंने देखे जो इन्होंने राइट किए हैं, परफॉर्म किए, had a lot to do with how the world is living today. अब हम used to हो गए, एक पूरा Zoom call का skit इन्होंने पहले एपिसोड में किया, which was extremely funny, क्योंकि जैसे हमको पता है they all have technical challenges और I need my children to come set up my Zoom calls for me and मैं थोड़ा अभी सीख रही हूँ real virtual meetings करना, but skits में काफी I think everything to do with apps वाले स्क्रिप्ट्स थे और पैंडेमिक में रेस्टोरेंट्स में जाकर कैसे होता है, या जूम कॉल में they actually had a physical Zoom call meeting set put up which was extremely funny. So I think हम सभी सीख रहे हैं। अभी 2 साल पहले we would all be in some 5-star hotel doing a press conference together and laughing and answering questions. आज हम सब पता नहीं, बलराज कोई जेल में बैठा है और संकेत और सुगंधा भी कहाँ कोई काला कपड़ा लगा तेजस्वी फोन पे बात कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए, तो वी आर ऑल गेटिंग यूज्ड टू दैट। शीतल, I got a call that they can't see me in the press conference and I'm like, I'm right here. Who cannot see Tejasvi? That's what they were calling me. We can't see you. We can't see you. I'm like, I'm right here. We can see you, and unfortunately now we can hear you also. Okay, Tejasvi is a good sport. वो बेचारी मेरा जोक्स लेती रहती है। हाँ। I don't have much of an option. खाना भी खिलाऊंगी देखो, चल। I didn't get your कड़ी चावल last time का. What else was there? Some chicken was there, no? I didn't get that. Catch Sanket, he takes everything home.
You cannot trust these people. You have to give me. मैम the- मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। उफ, सबकी नजर है मेरे खाने पे यार। आगे बढ़ो, तेरी आगे नजर बढ़ो। है सबके खाने पे, तू उल्टा बोल हाँ। रही। अगला सवाल ज्योति, है, पूछ ले। यस अगला सवाल है गौरव जी से। सवाल ये है कि आज की तारीख में कॉमेडी जैसे शो कितना जरूरी है, क्योंकि कोविड की वजह से काफी लोग घर में रहकर परेशान हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई 4 आर्टिस्ट या कोई भी ये जवाब दे सकता है हमें। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी टीम के अली सर भी इसमें जवाब दे, बिकॉज ये भी है कि ये इतने टाइम बाद 1.5-2 साल का जो गैप हुआ है, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा है, हर किसी के लिए रहा है। तो इस बीच में हम लोग जब वापस आ रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम लोगों को हंसाने के लिए आ रहे हैं, और कंपटीशन में और भी शोज बीच में कोई कॉमेडी शो नहीं है, एक दो शो आते थे, उसके बाद ये बहुत अलग है। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग आए हैं तो देर आए बट दुरुस्त है, अच्छे टाइमिंग पे आए हैं, तो अच्छा है सबके लिए कि बेहतर हम हंसा पाएंगे लोगों को। गौरव जी, आपके लिए एक और सवाल है कृतिका का आज तक से, कि जी कॉमेडी शो के शूटिंग के दौरान अब तक का आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? कौन सा फेवरेट एक्टर है और कैरेक्टर? मेरा खुद का इस शो में आपका फेवरेट कैरेक्टर और एक्टर कौन है अभी तक की शूटिंग के दौरान? सोच के बोलना। सभी हैं। फरा मैम बोल दे। नहीं, मैं कैरेक्टर, मैं अपने आप में कैरेक्टर हूँ। ले सोच के बोल। हाँ, अली असगर मेरे फेवरेट है, और वैसे सभी लोग हैं जिनके साथ मैं काम किया, बट मैं अली सर को बहुत टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ, इनको मैं काफी पसंद भी करता हूँ, तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट अली सर। और बाकी सिद्धार्थ है, सभी लोग हैं, मतलब संकेत, मतलब सब लोग हैं, बट मोस्टली अली सर मेरे फेवरेट है। थैंक यू गौरव जी। अगला सवाल तेजस्वी से है, आंचल का टेली रिपोर्टर से जो है। उनका सवाल ये है कि हार्डकोर टेलीविजन के बाद अब आप कॉमेडी जॉनर में कदम रखने जा रहे हैं, इस नई जर्नी के लिए कितना एक्साइटेड हो और किस वजह से आपने ये बहुत बड़ा कदम लिया है? मैं किसी ने कुछ बोला क्या? हाँ, क्या है यार, मुझे जवाब देने दो ना, मेरा सवाल है यार। See, this is what happens with me on the set, and nothing. So I am extremely excited. This is very different. Even though I mean, of course, we're all artists, but comedy is not even close to my genre. So it's basically a learning process. मैं यहाँ सिर्फ सीखने आई हूँ. Besides that, I have always liked experimenting with. I've always tried new things in life, and this thing came up, or it had been about like 1.5 years since मैंने shoot किया था for even a daily or whatever. So I wanted to try something new, और फिर I wanted to learn something, so I think that's why I just took it up, and I'm very excited. थैंक यू तेजस्वी। अगला सवाल बलराज जी से है। इंडियन एक्सप्रेस से सना का सवाल है कि आपके कॉमेडी एक्ट्स के बीच में क्या हमें आपकी अब मिमिक्री भी देखने को मिलेगी? क्या देखने को मिलेगी? मिमिक्री। पहले सब लोग हंसते हैं, सब लोग इस पे हंसते हैं पहले। फरा में बलराज मिमिक्री बहुत अच्छी करता है, 150 आवाज सेम आवाज में निकालता है, सेम आवाज में। मैं वही सोचूं कि अभी 4 एपिसोड शूट किए, बलराज ने मिमिक्री तो की नहीं है अभी तक। मैं छुपा के रखा था। मेरे हर एक्ट में आपको सिद्धार्थ की मिमिक्री देखने को मिलेगी, और अभी अगर हम लोग पार्टनर एक्सचेंज करेंगे तो फिर अली भाई, गौरव, इन सब की, संकेत की मिमिक्री देखने को मिलेगी। और मतलब मेरे एक्ट में आपको हर एक्ट में मेरी मिमिक्री देखने को मिलेगी, चाहे मैं डॉक्टर बनूं, चाहे मैं टीटी बनूं। राइट फरा मैम? पता नहीं, मैंने देखी नहीं, अभी बता अभी मुझे नेक्स्ट एपिसोड में। अरे मेरी खुद की मिमिक्री। तू अपने आप का अपना बलराज बन के आता है हर एक्ट में, ऐसे बोल रहा है? वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तो अभी देख यार, मिमिक्री हमारे शो में संकेत करता है सबसे बढ़िया, सिद्धार्थ करता है, अली भाई करते हैं, गौरव करता है, तो मिमिक्री इन सब की देखने को मिलेगी। और सुगंधा? हाँ, सुगंधा भी करती है, सुगंधा भी बोले सुगंधा लड़कियों का नाम सुगंधा को बुलाओ सुगंधा, I'm sorry। All the girls in the group, सुगंधा।
सुगंधा तो मेन है यार। कहीं हमारी टीम में फूट नहीं डाल पाएगी। अभी आदित्य भी करता है यार अपने unite डैड कर रही की हूँ। मिमिक्री। आदित्य कहाँ है? हाँ, आदित्य आदि अपने डैड की तो हम भी करते हैं, वो फेमस नहीं है हम क्या करें। गुड वन। थैंक यू। अगला सवाल दिव्यांश द्विवेदी से है। मनीषा फ्रॉम इंडियन विकी मीडिया इज आस्किंग, लोग आपको छोटा सलमान खान बुलाते हैं आपकी मिमिक्री की वजह से, क्या इस शो में भी आप उनकी मिमिक्री करेंगे? हाँ करेंगे तो जरूर, आगे आगे आपको पता लगेगा कि मैं क्या मिमिक्री करूंगा। तो वरना तो इस शो में सबसे मैं मिमिक्री सीख भी रहा हूँ, क्योंकि गौरव भैया, अली सर, संकेत भैया एंड सुगंधा दीदी, उनसे भी मैंने काफी मतलब सीखने का ट्राई किया है अलग अलग एक्टर्स की। क्योंकि मैंने तो अगर अभी सलमान सर की अगर की है मिमिक्री, तो मेरे को बहुत सारी न्यू एक्टर्स की मतलब जो जिनकी मैं नहीं कर पाता था उनकी करने को भी मेरे को सीखने मिलेगा। तो इस चीज के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड अगर आपको देखने में मजा आए मेरी सलमान सर की मिमिक्री। थैंक यू दिव्यांश। ओके, कुछ सवाल है जो चैट्स में बहुत सारे जर्नलिस्ट के आ रहे हैं, सो आई जस्ट रीड देम थ्रू टू यू। अगला सवाल है अनुराग शुक्ला जी का, राष्ट्रीय सहारा लखनऊ से। उनका सवाल ये है कि इस शो में ऐसी क्या खास बात होगी जो दर्शकों को जोड़ पाएगा, ऐसे में जब अन्य चैनल पर बड़े शो भी आने वाले हैं। इस शो में फराह खान है, और इस शो में अली असगर है, सिद्धार्थ सागर है, चित्राशी है, सुगंधा है, संकेत है, दिव्यांश है, गौरव है, ये आदित्य नारायण, पुनीत पाठक। अलग अलग जोन के 11-12 आर्टिस्ट हैं, और उन सब के वो सब पहली बार आ रहे हैं एक साथ, तो ये तो अपने आप में खास बात हो गई ना। आई थिंक ऑल्सो द राइटिंग ऑफ द शो बहुत अलग है, जैसे कि सिर्फ स्टैंड अप नहीं है, मिमिक्री तो एक्चुअली बहुत ही कम है हमारे शो में। इट्स वेल रिटन स्किट्स और टाइमली स्किट्स और बहुत सारी फिजिकल कॉमेडी जो हम नहीं देखते हैं दूसरे शोज में। बहुत सारे इलेबरेट कॉमिक सेट्स हैं और फिजिकल कॉमेडी काफी हो रही है, जो आज तक तो मैंने इंडियन टेलीविजन पे नहीं देखी है। थैंक यू फराह जी। अगला सवाल थोड़ा इसी कॉन्टेक्स्ट पे था, संदीप जी का वर्तमान पब्लिकेशन से, कि इस शो की यूएसपी क्या है, और डू यू थिंक दिस टाइप ऑफ शो रियली बेनिफिट्स यंगस्टर्स? दैट्स लाइक benefits, I think laughter benefits everybody from children to old people to youngsters to हंसना अपने आप में आई थिंक एक आर्ट है। हंसाना एक बहुत बड़ी कला है, रुला तो कोई भी देगा इजीली, हंसाना बहुत मुश्किल होता है। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दीज एक्टर्स, ही बोलूंगी मैं, कॉमेडियंस नहीं बोलूंगी, बिकॉज दे आर ऑल सो टैलेंटेड। और हर किसी के दिल में, वेदर इफ इट इज मी ऑल्सो, जो वहां अलग कुर्सी पे बैठे हैं, हम सबको एक एंटरटेन करने की चाह जो है वो दिल से आती है, कि हमको सबको एंटरटेन करना है, हमें उनको हंसाना है, हमें चाहिए कि लोग गिर जाएं हंसते हंसते। या so I think that is a inborn feeling that all of us have, and that is why we work, they all work so hard. So I think it definitely benefits. Laughter is the best medicine, they say. So इससे ज्यादा बेनिफिट और क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फराह जी। एक और सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है, आज की तारीख में कॉमेडी जैसे शो कितना जरूरी है, क्योंकि कोविड की वजह से काफी लोग घर को, ये सवाल वापस रिपीटेड है, तो रिपीट हुआ है ये। हाँ जी, वो काफी कोविड रिलेटेड काफी सवाल आ रहे हैं। ओके, एक और सवाल है, बेहतर कॉमेडी जज करने का क्राइटेरिया क्या है, और कोरियोग्राफी से जज का कैसे बने आप जज? एक और ये किसने पूछा ये सवाल? विजय चौहान संदेश। विजय जी, आप 20 साल से कहाँ रह रहे हो? मैं 20 साल से जजिंग कर और विजय जी, मैं जो फिल्में बनाती हूँ उसमें ह्यूमर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और वो आई थिंक बेहतरीन ह्यूमर होता है, वेदर इट इज ओम शांति ओम, वेदर इट इज मैं हूं ना, वेदर इट इज हैप्पी न्यू ईयर, वेदर इट इज इवन तीसमान खान, जो अब जाके लोग बोल रहे हैं कि बहुत फनी पिक्चर है, बहुत फनी पिक्चर है। तो आई थिंक ह्यूमर, एक सेंस ऑफ ह्यूमर, आई एम नोन फॉर दैट। तो जज मैं नहीं कर रही हूँ इनको, मैं हंस रही हूँ। जो ज्यादा मुझे हंसाएगा, तो इट्स नॉट लाइक आई एम टेलिंग देम यू वर बैड, यू वर गुड। इनके एक्ट से, अपने आप से मुझे हंसी आनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज। तो यही है,
थैंक यू और फराज। और कोई जजमेंट नहीं है इस पे। अली जी, अगला सवाल आपसे है कि जी। व्हाट्स न्यू आर यू गोइंग टू ब्रिंग इन द कॉमेडी जॉनरा थ्रू दिस शो, लाइक व्हाट्स न्यू फ्रॉम योर एंड इन दिस शो? न्यू जैसे कि अब सबने ये हमने जिक्र हो चुका है कि बहुत सारे फिजिकल कॉमेडी है इस शो में, एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है, हम सबका, ठीक है। एंड 2 टीम्स है, 5-5 जन है हम, तो जो कभी हम 5 जन मिलकर के गैग करते, कभी हम 2 जन मिलकर के गैग करते, कभी किसी का स्टैंड अप है, कभी फिजिकल कॉमेडी है जो कि वो 90 डिग्री वाला एक स्लोप जो है उसमें है, वो 90 डिग्री जो हमने अभी तक नहीं किया, सिद्धार्थ और बलराज ने वो किया है, जहां वो इट्स 90 या 180 डिग्री 90 डिग्री वाला वो है। देन देयर इज अ मिनिएचर सेट, मतलब एक सेट पे एक और मिनिएचर सेट है जहां ढंग से आप खड़े नहीं रह पाते, मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल होकर के उसमें एंटर करना है, निकलना है। सो देयर आर लॉट ऑफ न्यू, वी हैव ट्राइड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। सो यू नो, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि इस बार मैं ऐसे कर रहा हूँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स है। And we have just started. We are looking forward. We are very excited. And for me, honestly, ये इनमें से बहुत सारे talented actors हैं जिनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। So मेरे लिए एक fresh energy, एक कहते ना एक नया combination, वो मुझे ज़्यादा excite कर रहा है। And every day there is a new chapter for me. एक नया हमको गैग करना है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेहनत भी बहुत है, हम सबकी तरफ से मेहनत बहुत है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें फराह मैम को हंसाना है, उसके बाद हम ऑडियंस तक पहुंचेंगे। सो टू मेक, आई थिंक मोर देन एनीथिंग इनकी मेहनत, ये इतना फिजिकली मैं शॉक हो जाती हूँ, ये इतना इनको लग रही है मार। हमें तो मजा आ रहा है, केले के छिलके पे कोई फिसल के गिरे तो हम हंसते ही हैं, बट ऑल ऑफ देम आर लिटरली गेटिंग फिजिकली हर्ट। इतनी डेंजरस टाइप की कॉमेडी है। बलराज हो या अली ने किया है और सिद्धार्थ ने किया है, सुगंधा के तो मुंह पे लग गई थी पहले दिन, बट दीज गाइज जस्ट कंटिन्यू विद अ स्माइल ऑन देयर फेस, and that is what is amazing. I would say in terms of nayapan is more like, this show is more like Saturday Night Live, और जैसे हम SNL देखते हैं कि स्किट्स है, छोटे छोटे टाइमली स्किट्स है। कभी अभी तक किसी ने एक कैरेक्टर पकड़ के कुछ किया नहीं है। शायद अगर कोई कैरेक्टर पॉपुलर हो जाए तो बाद में कर सकते हैं, बट एवरीबडी इज डूइंग न्यू थिंग्स। संकेत इज ट्राइंग स्टैंड अप, सुगंधा इज डूइंग फिजिकल कॉमेडी, बलराज इज डूइंग समथिंग जो पहले किसी ने किया नहीं है, वो ये सब ट्राई कर रहे हैं। जी, थैंक यू अली जी, थैंक यू फराह मैम। अगला सवाल है डॉक्टर संकेत और सुगंधा जी से। आलोक शर्मा दैनिक अधिकार से इनका सवाल है कि पहली बार आप साथ में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग आलोक जी आफ्टर वेडिंग पहली बार आ रहे हैं, बट इसके पहले हमने काफी शोज किए हैं। इसके पहले भी एक शो किया था हमने साथ में, तो शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका हस्बैंड 24 घंटे आपकी नजरों के सामने हो, इससे अच्छी बात नहीं है। बट इससे आपको कैसा लग रहा है, बताइए डॉक्टर। बोलो। तो यही है कि पहले भी हमने बहुत सारा काम किया हुआ है और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और शादी के बाद एक अलग सा होता है कि बीवी सारे स्क्रिप्टों में ऊपर होती है और पति सिर्फ हांजी कर रहा होता है। ये स्क्रिप्ट में भी हो रहा है और घर पे भी हो रहा है, वही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। इसलिए हम ऑपोजिट टीम्स में, वहाँ पे एक अलग होता ना, एक जंग हमारे बीच असली होती है, क्योंकि घर पे लेके जाते हो क्या वो जंग तुम लोग? हाँ, घर पे लेके जाते हो वो जंग? नहीं, घर जाते हो मैं फट से कार में बैठने से पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी आज के लिए सॉरी यार। थैंक यू डॉक्टर संकेत, थैंक यू सुगंधा। अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल ले रहे हैं आप। ये शो एपिसोड्स के हिसाब से चलने वाला है जिसमें कोई स्टोरी या फिर एक यूजुअल कॉमेडी शो की तरह होगा? बोल गौरव। इट्स अ यूजुअल कॉमेडी शो, मतलब डेली सोप नहीं है जो एपिसोड्स चलेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर कोई कैरेक्टर्स लोगों को पसंद आए, फीडबैक मिले, तो आई एम श्योर दे विल टेक दोस कैरेक्टर्स आगे।
लेकिन अभी तो एक एपिसोड खत्म हुआ, वो स्किट्स खत्म हो गए, उसके एक्ट्स वही रह जाते हैं। कोई कंटिन्यूशन नहीं है इसमें कि पिछले में ये किया तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। हर एपिसोड में अलग अलग चीजें होंगी, एपिसोड शुरू होगा खत्म होगा, तो एक दिन सैटरडे को आप आएंगे, पूरी स्किट देख के हंसेंगे, फिर नेक्स्ट संडे को अलग होगा। तो कोई इसमें कंटिन्यूशन नहीं कि ये कैरेक्टर रहेगा तो यही, बीच में कोई अगर कोई कैरेक्टर के साथ निखर के आ गया तो उसको कंटिन्यू करना हुआ तो अलग बात है, ऑडियंस पे डिपेंड करता है, पसंद आ गया। बट हमेशा आइए, संडे को हंसिए, सैटरडे को हंसिए, वो अलग अलग चंक में वैसा है स्किट। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, कुछ भी हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। अगर औरत भी बन जाए तो हर बार नए कलर की साड़ी पहनेंगे। Thank you so much. Thank you everyone for your time. Now we'll move on to one-on-one interviews. And thank you so much. Anuj, Bye. thank you. Thank you. Bye, guys. Bye. 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 Bye.